Let's head to fifth paragraph of our unit and we'll discuss difficult word meanings from this paragraph. The first word is fossil energy. It means heat energy released by burning fossil fuel, और उर्दू में हम इसे कहेंगे जीवाश्म तवानाई. Second word is prime. It means of first importance, यानी आज़म. Third word is intensive. It means thorough, यानी इंतहाई. Fourth word is pesticides. It means a substance used for destroying insects or other organisms harmful to cultivated plants or to animals. यानी कीड़े मार दवाएं. Fifth word is substitute. It means replacement या मुतबादिल इसे कह सकते हैं. Sixth word is labor. It means productive work, especially physical work यानी मुशक्क़त. Seventh word is yields. It means production या outputs या इसे हम पैदावार भी कह सकते हैं. Eighth word is finite. It means limited in size or extent यानी महदूद. Ninth word is accelerates. It means increase in rate, amount or extent यानी तेज करना. Tenth word is escalate. It means increase rapidly यानी तेजी से बढ़ रहा है. Let's move on to the explanation of this paragraph. अब इस paragraph में fossil fuels का बताया गया है कि it is also one of the natural resources जो कि हमें food productivity में help कर रहा है और हमारी agricultural purposes को fill कर रहा है. So fossil fuels 80% तक use हो रहे हैं. Fossil होते क्या हैं? जो organisms मर जाते हैं, decay कर जाते हैं, उनका surface से मिलना और फिर उनसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स आते हैं जैसे कि गैस, पेट्रोलियम एंड देन कोल. ये सब हमारे पास फॉसिल फ्यूल है. इनसे जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारे पास फॉसिल एनर्जी होती है और करंटली 80% फॉसिल एनर्जी यूज की जा रही है बाय डेवलप्ड कंट्रीज फॉर व्हाट एग्रीकल्चरल पर्पसेस. तो 80% जब हम यूज कर रहे हैं सून ये नेचुरल रिसोर्स भी हमारे पास डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा. द इंटेंसिव फार्मिंग technologies of the developed countries use massive amounts of fossil energy or for fertilizers. तो agricultural purposes में किस लिए fossil fuels use हो रहे हैं, fossil energy use हो रही है? For fertilizers, for pesticides and for irrigations and for machines also. Machines में ये petroleum के लिए use किए जाते हैं, for fuel के लिए use किए जाते हैं. और ये किस लिए use किए जा रहे हैं? For replacing human labor. Developing countries में fossil energy has been used primarily for fertilizers and irrigation. किस लिए? कि वो yield को maintain रख सके. Yield क्या होता है? Productivity या outcome को या अपने product को maintain रख सके, ना कि वो human labor को replace करें. जिस वजह के लिए भी fossil energy इतना ज़्यादा use हो रहा है, ये soon decline या deplete हो जाएगा क्योंकि ये एक finite source है. एक limited amount of organism जो है वो decay किए हैं और उनसे हम अपनी जो फॉसिल एनर्जी वो ले रहे हैं. अगर इतना ही यूसेज इसका चलता रहा तो सून ये नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा और हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. किस सूरत में? क्योंकि ये एग्रीकल्चरल पर्पसेस में यूज़ होता है तो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो इस वजह से इफेक्ट होगी. Let's move on to sixth paragraph and difficult word meanings from this paragraph are: first is assist. It means to help यानी मदद करना. Second is vital. It means essential या necessary यानी अहम. Third is raw materials. It means material suitable for manufacture, use or finishing यानी खाम माल. Fourth word is sustained. It means maintained यानी बरकरार. Fifth word is enhance. It means increase या बढ़ाना. Sixth word is eroded. It means become ground down or deteriorate या crumble या मिट गया या बिखरी हुई. मट्टी को भी हम eroded soil कहते हैं. Seventh word is compensate. It means adjust for या मुआवजा करना. Eighth word is sustainable. It means able to maintain यानी पायदार. Ninth word is integrity. It means wholeness या उर्दू में हम इसे कहेंगे सालमियत. Tenth word is biodiversity. So it means the diversity of plant and animal life in a particular habitat or in the world as a whole यानी हयाती तनु. Let's move on to the explanation of this paragraph. इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन हो चुकी है टेक्नोलॉजी में. अब टेक्नोलॉजी जो है वो हर काम कर सकती है.
लेकिन टेक्नोलॉजी में अभी भी ये इनोवेशन नहीं हुई है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को पैदा कर सके। वो उसका एक बेहतर यूज़ यानी इफ़ेक्टिव यूजेज तो कर सकती है कि नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह अपने मैक्सिमम पर यूज़ किए जाएं, या मेंटेन भी कर सकती है, लेकिन इट कैन नॉट प्रोड्यूस दीज नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो इरोडेड सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ा देते हैं। अगेन, फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? ये हमें फॉसल फ्यूल से मिलते हैं, लेकिन ह्यूमन कैन नॉट मेक टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है? द सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। अब जो हमारे पास टॉप सॉइल होती है उसी से हमारे पास या तो फर्टाइल सॉइल आती है या इरोडेड सॉइल आती है। जब हमारे पास टॉप सॉइल एक मेन रिसोर्स ही नहीं होगा तो हम उसमें से कैसे जो है फर्टाइल सॉइल लेंगे या इरोडेड सॉइल लेंगे? तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक ख़राब चीज़ को ठीक तो कर सकती है, लेकिन एक नेचुरल रिसोर्स खुद से हमें पैदा करके नहीं दे सकती है। Indeed, fertilizers made from fossil fuels are presently being used to compensate for eroded soil, यानी eroded soil की fertility को बढ़ाने के लिए ये fossil fuels जो हैं as fertilizers use हो रहे हैं। तो एक प्रोडक्टिव और अच्छे से मैनेज्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम किस चीज़ पर डिपेंड करता है? यानी एक ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे, प्रोडक्ट दे, आउटकम दे। ऐसा सिस्टम इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बायोडाइवर्सिटी यानी द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन पर्टिकुलर हैबिटेट, उन सब की इंटेग्रिटी को, होलनेस को मेंटेन करके रखा जाए। थैंक यू।